and today it costs more than rupees 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, rupees 1,400. Similarly, prices of milk, edible oil, and dal have increased by 113%, 217%, and 353% respectively in the last 5 years. Electricity prices for up to 50 units have increased by 277%, and petrol by 195% in the same time period. 8 years ago, a poor household whose joint income was rupees 35,000 rupees could buy sufficient amount of atta, edible oil, milk and other food items to provide nutritious food for their families, afford a 2-room house, and put their children through school, and have enough savings for medical emergencies and recreation. Today, that would require a joint income of 70,000 rupees to fulfill those same needs. This increase in cost of living and erosion in the value of wages is unprecedented and unacceptable. In this climate of inflation, unemployment, and resulting poverty, the continuing instability and consequent low growth has meant that jobs are difficult to come by, and many poor people are resorting to seek low-paid jobs in the informal sector. The poorest 10% of the population is working for as low or lower than rupees 14,500 a month. Today, 93 million people in Pakistan, which is 40% of our population, lives below the poverty line, and 15 million people have been added to this list between 2018 and 2023. On the one hand, we have a historic economic crisis, and on the other hand, we have catastrophic climate crises that not only have an outsized impact on our economy, but also threaten the life and well-being of every Pakistani. Once in 100-year floods and droughts have become a seasonal affair. After the Arctic and the Antarctic, the largest presence of snow and ice in the Himalayan region, scientists have declared it is the third pole. Pakistan is undeniably a frontline state in the climate crisis. It is predicted that Pakistan's 241 million people will first be at risk of perpetual floods and ultimately perpetual droughts. This is despite Pakistan's carbon footprint being less than 1%. We need to completely reform Pakistan's development priorities, focus on climate resilience, adaptation, and energy transition. We can do this in a manner that leads to inclusive growth and generates green jobs, battling not only this climate crisis, but the rampant inflation, unemployment, and poverty as well. We must put ordinary working people, women, men, and the youth center stage, empowering provinces, local governments, and communities, and protecting the most vulnerable. Our 10 pledges. Pledge number 1 is doubling real income, with an increase in the minimum wage in real terms by 8% every year. That is our pledge, that we will increase minimum wage in real terms
by 8% every year to take it to a living wage. Double public investment, leading to large-scale increase in employment opportunities and thus reducing unemployment and underemployment. We will focus investment and jobs creation on the needs of local communities. Public-private partnership in the social and productive sectors at the provincial and local levels. We will achieve major boost in private investment in the housing sector by the people at the bottom of the pyramid, by a massive increase in the private home ownership amongst the poorest of the poor. And reforms and investments in agriculture and small business will lead to growth in incomes and employment for the poorest. Our second pledge is our Green New Deal. We have a climate change-related investment will be undertaken in the public sector and the public-private partnership mode and by foreign direct investment. We aim to completely restructure Pakistan's development strategy, Pakistan's development agenda, Pakistan's PSDP, to tackle the climate crisis. Investment in Pakistan's public sector infrastructure, including roads, communication, health, irrigation, agriculture, with a focus on climate resilience. Once investments are made, it will unleash economic activity, generate employment opportunities, and prepare us for the impacts of climate change. Indigenous and green energy. Access to affordable electricity is a right. The existing system of pricing and distribution has failed our people. We will provide sustainable solutions to the energy crisis by providing electricity through indigenous sources and renewables. We will establish green energy parks across Pakistan through public-private partnership, providing off-grid power and green energy solutions for communities. In order to catalyze the energy transition, the poorest households will be given free electricity up to 300 units through solar generation, and this will be funded through carbon credits. Our third pledge, education for all. We will ensure schooling for all girls and boys of school-going age and implement Article 25A of the Constitution in letter and spirit. Ensure the provision of quality primary schools within 30 minutes travel time and quality middle and secondary schools within 60 minutes travel time in all communities. Stipends will be provided for school-going children in rural and low-income urban communities. And we will establish, inshallah, we will establish a university in every district of Pakistan. Our fourth pledge is healthcare for all. We believe that there's nothing more important than the health of a nation, and to this end, we will extend health initiatives already in place in Sindh across Pakistan. We will provide free primary healthcare and medicines across the country to the needy. Ensure all basic health units are fully operational. Provide free treatment for chronic disease. Chronic diseases, diseases of the heart, diseases of liver, kidney, through public sector as well as through the public-private partnership model. Our fifth pledge is housing as a right. Housing for the poor, the landless, and the working class. Schemes covering rural and low-income urban areas in all provinces and regions.
modeled on the success of historic initiatives such as the Punjab Marhala scheme and the ongoing Sindh People's Housing Program for flood effectives. Families without ownership will be covered. At least 3 million climate-resilient homes will be built, and women heads of households will get the legal titles, the land rights of these properties. Kachhi abadis across the country will be regularized, and the inhabitants will get ownership rights. They will also get their malakana hukuk. People living in the Kacha area, जहाँ से आजकल ये जो law and order situation है, उनको हम दावत देते हैं, उनको हम कहते हैं कि हम आपको मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहते हैं. आप ये हथियार छोड़ दे, ये वायलेंस करना छोड़ दे, आप पुरअमन तरीके से मुआशरे में आए, और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके ख़वातीन को भी कच्चे में मालिकाना हुकूक दिलाऊंगा. We will, and by harnessing public and private sector, we will be harnessing the public and private sector for home loans and mortgages for working people and for the lower middle class. ताकि एक तो हम गरीब तरीन लोगों के लिए पक्का घर बनाएंगे, मालिकाना हुकूक देंगे, मगर उनके पास जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो सफ़ेद पोश तबका है, उनके लिए हम समझते हैं कि मुल्क भर में अब बहुत महंगा हो चुका है घर लेना, बहुत मुश्किल हो गया है घर लेना. तो हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे वो उन नौजवानों के लिए जो नया अपना रोज़गार कर रहे हैं, या पहला एक ख्वाहिश होता है कि वो अपने लिए एक घर ले अपने ख़ानदान के लिए, तो उसमें हम चाहते हैं कि जो डिज़र्विंग लोग हैं उनको हुकूमत मदद करे, और हम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को मोबिलाइज करके ये कर्ज दिलवाए उनको, मॉर्टगेज दिलवाए उनको, ताकि वो अपने लिए वो अपना घर ले सके. जो हमारा sixth pledge है वो गुर्बत मिटाओ, बेनज़ीर income support expansion. We will expand the Benazir Income Support Program network to provide much needed support to additional citizens who have fallen below the poverty line because of the unprecedented inflation and unemployment we are experiencing. In addition to poverty-based cash transfers, we will expand the following: Wasila-e-Haq, Wasila-e-Taaleem, Wasila-e-Rozgar, and Wasila-e-Sehat. Wasila-e-Haq ke through a program, the program to provide micro loans bila sood karze to women with a view to enhance small business and entrepreneurship among the underprivileged so they can break out of the cycle of poverty. We have successfully implemented this in Sindh with the People's Poverty Reduction Program through implementation partners like the SRSO. Wasila-e-Taaleem, the program is to provide a top-up cash transfer per eligible child in the household with no upper limit on the number of children per household who are eligible for the program. Recipients of the Wasila-e-Taaleem transfer will remain conditional on maintaining a minimum 70% attendance rate तालीमी इदारे में स्कूल में आपका अटेंडेंस रेट जो है उसको 70% होना पड़ेगा ताकि ये वसीला-ए-तालीम उनको मिले. वसीला-ए-रोज़गार में the program is to provide vocational training to a number of beneficiary families. The
the target beneficiaries will be offered up to 1-year training option that match their personal circumstances and self-employment opportunities that exist within their district. Wasila Sehat ke through इन्हीं खानदानों को we want to provide the program to provide a protection against catastrophic health expenditure to registered beneficiaries all across the country. सिंध में तो हमने मुफ्त सेहत के इदारे खड़े किए हैं, बाकी मुल्क में ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, और हम समझते हैं कि इसके बजाय कि तमाम लोगों को कोई सेहत कार्ड देने के, कि हम उन गरीब तरीन लोगों को जिनका हक बनता है उनको हम पूरी तरीके से कवर करें. तो ये हमारा गुर्बत मिटाओ बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिलसिले में जो हमारे वादे हैं. उसके बाद और वादे भी हैं. नंबर 7, किसान खुशहाल पाकिस्तान. सॉरी, वैसे तो हम कहते हैं किसान खुशहाल तो मुल्क खुशहाल, लेकिन ये हमारा वादा है कि खुशहाल किसान तो खुशहाल पाकिस्तान. Agriculture is the backbone of our economy, and we will need to invest heavily in the farming sector, and particularly small farmers. To this end, we will commit the following: the recognition of small farmers, Kisan, Hari, male and female agricultural workers as stakeholders in agriculture through registration with the Hari card and the Kisan card. Targeted, तमाम जो हारी होते हैं, छोटे ज़मींदार होते हैं, छोटे किसान होते हैं, उन सब को हम उनका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनको हम हारी कार्ड दिलवाएंगे. And then through this card, फिर इस कार्ड के थ्रू हम टारगेटेड इंटरवेंशंस करेंगे जो कि डायरेक्टली किसान तक पहुंचे, डायरेक्टली किसान के हाथ में, किसान की जेब में ये मदद दिया जाए. इस कार्ड के थ्रू अगर हमने हाई क्वालिटी सीड्स को सब्सिडाइज करना है तो हम कार्ड के थ्रू करेंगे. अगर हमने DAP और यूरिया को सब्सिडाइज करना है तो हम कार्ड के थ्रू इंशाल्लाह ताला करेंगे. हम आपको इस कार्ड के थ्रू आपके प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग और प्रोड्यूस में भी मदद करेंगे. लैंड इंप्रूवमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट के लिए मदद किसान कार्ड के थ्रू, हारी कार्ड के थ्रू मिलेगा. लाइफ स्टॉक एक्सटेंशन सर्विसेज भी हारी कार्ड के थ्रू, किसान कार्ड के थ्रू फैसिलिटी मिलेगा. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जो मौसमी तब्दीली की वजह से कभी ये सैलाब आ जाता है, तो कभी ड्राउट है, कभी ज्यादा गर्मी है, तो कभी बहुत ठंड है, उसके लिए अब हमें अडेप्ट होना है. जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं उसका सपोर्ट अगर हमने छोटे ज़मींदारों को, छोटे किसानों को पहुंचाना है तो वो भी हम डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू उनको मदद पहुंचाएंगे ताकि वो सहूलत ले सके. साथ साथ जो ये कुदरती आफत है, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो ड्राउट हो, या ये लोकस्ट का भी हमारा एक हमले हुए थे, तो हम चाहते हैं कि ख़ास तौर पे जो गरीब जो छोटे किसान हैं, जो हारी है, उनके लिए हम क्रॉप इंश्योरेंस का सहूलत इस हारी कार्ड के थ्रू उनको दिलवाना चाहते हैं, ताकि अगर किसी साल में कोई नुकसान हुआ और उनको अगर हमारा बेनज़ीर हारी कार्ड के थ्रू ये वो रजिस्टर्ड है, तो नुकसान उठाने के बजाय उनका क्रॉप इंश्योरेंस वो नुकसान जो है वो कवर करें. And then we also want to promote diversity in crop and ensure crop support prices for various crops. We also want to reform of the tenancy and labor laws to boost agriculture investment, leading to inclusive growth. वो किसानों के लिए हमारा वादा. फिर उसके बाद मजदूरों के लिए, मजदूर को मेहनत का सिला हम दिलवाना चाह रहे हैं, ये हमारा वादा है. Or informal sector workers continue to lack job security and structured access to social protection. To facilitate them, we aim to guarantee a wage commemorative to their work, working towards a living wage for all. Registration of all workers, including the informal sector, those self-employed and agricultural workers, for social protection. And then through the Mazdoor card, they will be able to avail
पेंशन्स, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंस, स्कूल फीस, जो भी तमाम तो मजदूरों को सहूलत उनका हक जो है उनको हम डायरेक्टली बेनज़ीर मजदूर कार्ड के थ्रू ये तमाम सहूलतें पहुंचाएंगे। माजी में जो कोई आप अगर कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं तो फिर वो वहाँ से वो इंडस्ट्री से पैसा लेके फिर EOBI और वो पेंशन का सिलसिला और सब कुछ तो चलता रहता है। अब हम क्या चाहते हैं कि मजदूर कार्ड के थ्रू कि जो भी मेहनत करने वाले शख्स है, जो भी मेहनत करता है, जो काम करता है, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे वो इनफॉर्मल सेक्टर में हो, चाहे वो किसी दुकान में काम करे, रेहड़ी वाला हो, रिक्शा ड्राइव करते हुए, मीडिया के ऑफिसेस में काम करते हुए, हम चाहते हैं कि आपको भी पेंशन का हक मिले। हम चाहते हैं कि आप सबको भी सोशल सिक्योरिटी की जो सहूलतें हैं हम वो पहुंचाएं। तो हमने इसको एक्सपैंड करने के लिए इसलिए कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सबसे पहले लेबर राइट्स दिलवाए थे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने उसके बाद लेबर राइट्स दिलवाए थे। सदर ज़रदारी के दौर में पहली बार हमने 2007 से लेके 13 और उससे आगे तक जो एक्सपेंशन हुआ है लेबर राइट्स में पाकिस्तान में वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। अब इंशाल्लाह ताला 21st सेंचुरी के मुताबिक 2024 में हम मजदूर कार्ड लॉन्च करके इनकलाब लेकर आएंगे हमारे मजदूरों के लिए और उनको अपना मेहनत का सिला दिलवाएंगे। फिर हमारा आखिरी दो वादे, जवान मुस्तकबिल। Pakistan has one of the largest young populations in the world. To best utilize this demographic and aid their seamless entry into the workforce, we will introduce the Youth Card, which will provide 1 year stipend. आपके लिए है, जरा सुने आप, एक मिनट. We will introduce the Youth Card, which will provide 1 year stipend for educated, deserving young men and women to transition to work. Student loan opportunities for higher education, and we will also link up with internships and trainee jobs in the public and private sectors, upgradation of its infrastructure to guarantee. Oh, no. We will also pledge for an upgradation of IT infrastructure to guarantee high-speed connectivity across the country to incentivize youth-led startups in all sectors. Youth centers will be established across the country for accessing libraries and digital libraries, free Wi-Fi, sports, culture and recreational facilities, vocational training, skills and language development classes, career and employment facilitation services. So दो चीजें हैं यहाँ जवान मुस्तकबिल के वादे में. एक हमारा यूथ कार्ड है और यूथ कार्ड के थ्रू हम चाहते हैं कि हम अपने नौजवानों को जो कि तालीम या कोई स्किल्स हासिल कर चुके हैं मगर वो रोजगार की तलाश में है, उनको हम 1 साल के लिए हुकूमत की तरफ से माली मदद पहुंचाना चाहते हैं ताकि वो जब वो रोजगार की तलाश में हैं उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ हो, उनको कोई सहूलत मिले. साथ साथ हम डिस्ट्रिक्ट वाइज यूथ सेंटर्स खोलना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये जो यूथ मरकज़ होंगे ये हमारे नौजवानों के लिए उनको पॉजिटिव एक्टिविटी दिलवाने के लिए, एक सेफ स्पेस फॉर पॉजिटिव एक्टिविटी दिलवाने के लिए हम ये यूथ सेंटर्स खड़ा करना चाहते हैं. कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसी लड़काना में सर शाहनवाज भुट्टो लाइब्रेरी बनाया और आज तक जिस तरीके से शहर के अवाम उस सहूलत को इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब आपके सामने है. अब जरा सोचिए कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में हम ऐसे फैसिलिटी पहुंचाए जहां ना सिर्फ वो लाइब्रेरी हो, साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी हो, साथ साथ वाईफाई का फैसिलिटी हो, साथ साथ एक स्पेस हो ताकि अगर उन्होंने स्पोर्ट्स खेलना है तो उनको स्पोर्ट्स के वो स्पोर्ट्स खेल सके. अगर वो सकाफती प्रोग्राम में एंगेज करना चाहते तो वो सकाफती प्रोग्राम करे. अगर वो गाना सीखना चाहते तो वो गाने सीखे. अगर वो नाचना सीखना चाहते तो वो नाचने सीखे. लेकिन एक ऐसा
पॉजिटिव एक्टिविटीज के लिए एक ऐसा जगह हम मुयस्सर करना चाहते हैं, और उनके साथ साथ तो रिक्रिएशन और स्पोर्ट्स और इन सारी चीजें के साथ साथ हम चाहते हैं कि वो तमाम मॉडर्न स्किल्स जो पूरी दुनिया में लेबर की जरूरत है, वो मॉडर्न स्किल्स से हम वो मॉडर्न स्किल्स अपने नौजवानों को सिखाएं। यूथ डेवलपमेंट के मतलब में आपको वो मॉडर्न स्किल्स देंगे ताकि वो स्किल्स आप लेके या पाकिस्तान में या कहीं और रोजगार आपको मिल सके। तो वो स्किल्स हम आपको दिलवाएंगे, चाहे वो कोई टेक्निकल स्किल हो या मैं समझता हूँ जो बहुत जरूरी है लैंग्वेज स्किल्स। हम आपको लैंग्वेज कोर्सेज भी लेके देंगे ताकि अगर आपने कहीं बाहर जाके काम करना है तो हम आपके इन यूथ सेंटर्स में वो लैंग्वेज कोर्सेज दिलवा सकते हैं। मैं वजीर खारजा रहा तो मुझे पता चला कि जापान में उनको हर साल 4 मिलियन लोग चाहिए, लो स्किल मीडियम स्किल वर्कर्स चाहिए, इसलिए उनका डेमोग्राफिक्स का प्रॉब्लम है जापान में। तो मैं चाहूंगा कि मैं डायरेक्टली आपको लिंक कर लूं। अगर अरबी की जरूरत है तो अरबी सिखाऊंगा, अगर जापानीज का जरूरत है तो जापानीज सिखाऊंगा, अंग्रेजी का जरूरत है तो अंग्रेजी सिखाऊंगा। और जिस तरीके से फिर कायदे अवाम ने दुनिया भर में पाकिस्तान के अवाम को रोजगार का बंदोबस्त किया, इंशाअल्लाह ताला मैं आपका रोजगार का बंदोबस्त करूंगा। आखिरी बात जो हम चाहते हैं इन यूथ सेंटर्स में कि एक करियर सर्विसेज मिले। करियर सर्विसेज का मतलब कि कोई एक करियर्स का दफ्तर का रोजगार के लिए उधर दफ्तर हो और वहां आप जाके आप कह सके कि मैं रोजगार की तलाश में हूं, वो आपको मदद करे। अगर आपको स्किल्स की जरूरत है वो स्किल्स की तरफ आपको भेजे, लैंग्वेज की जरूरत है आपको वहां भेजे, आपसे पूछे कि आपके अचीवमेंट्स क्या है, आपके क्वालिटीज क्या है आपका, और उस अंदाज से फिर वो आपको बताए कि आप कहाँ रोजगार तलाश करे। खुद उनके पास पूरा डाटाबेस हो कि पूरा पाकिस्तान में क्या वैकेंसीज है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, और जो बेरोजगार यूथ है हमारा उनको हम डायरेक्टली कनेक्ट करें उन वैकेंसीज के साथ। और ये जिम्मेदारी अब हुकूमत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने अवामी मुआशी मुआहिदा पेश कर दिया है और उनका कहना है कि नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए उनको मौके दिए जाएंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा। आर्मी चीफ को POF की पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक खुद इन्हिसारी जदीद टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है, ये ब्रीफ किया गया है आर्मी चीफ को। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा किया है जहाँ उन्हें POF की पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। खुद इन्हिसारी जदीद टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखा जाएगा और आर्मी चीफ को ये ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान का दिफा मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा किया है। मनाज़र भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आर्मी चीफ को POF की पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफ किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि खुद इन्हिसारी जदीद टेक्नोलॉजी के लिए काम को जारी रखेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है, ये कहना था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, आर्मी चीफ ने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह का दौरा किया है। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी अवामी मुआशी मुआहिदा पेश कर रहे हैं। न्यूट्रिशनल प्रोग्राम for expectant and new mothers to decrease stunting, wasting and infant mortality। तो ये प्रोग्राम हमने जो पायलट शुरू भी किया है सिंध में, मगर हमने सिंध भर में एक्सपैंड करना है, मुल्क भर में एक्सपैंड करना है कि पहले 1000 दिन जो है for a new mother, for an expecting mother, और जो पहले 1000 दिन होते हैं किसी एक बच्चा का जब वो पैदा होता है उसके पहले 1000 दिन के लिए हम
we will provide उनको हम स्टाइपेंड प्रोवाइड करेंगे, उनका टेस्ट एज इन वो लेकर आएंगे एवरी ड्यूरिंग डिफरेंट इंटरवल्स, दे ब्रिंग देयर चाइल्ड इन, उसका हेल्थ टेस्ट भी होगा, वेट टेस्ट भी हो जाएगा, और हम इंश्योर करना चाहते हैं कि वो पहले 1000 दिन के लिए, बिकॉज दैट्स व्हेन द मदर इज मोस्ट वनरेबल एंड व्हेन द चाइल्ड इज मोस्ट वनरेबल टू इन्फेंट मोर्टेलिटी एंड मैटरनल मोर्टेलिटी एज वेल। और लॉन्ग टर्म में हम जो वेस्टिंग है, जो माल न्यूट्रिशन है, उसको भी एड्रेस करने के लिए वो पहले 1000 दिन के लिए हम इंश्योर करना चाहते हैं कि जो तमाम जरूरियात है उस बच्चा को मिले और वालदा को भी मिले। साथ साथ हम चाहते हैं कि स्कूल में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल में उनको एक मील मुफ्त मिले, ताकि ये पूरी दुनिया अब मान चुका है कि अगर आप भूखे हो आप कैसे पढ़ेंगे, कैसे तालीम हासिल कर सकेंगे, कैसा वो आप अपना ग्रेड्स पे और अपना काम पे फोकस करेंगे। पाकिस्तान में अगर इतना हमारा तादाद, हमारा पॉपुलेशन का गुर्बत की नकीर के नीचे है, तो हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि बिला तफरीक हर किसी को जो गवर्नमेंट स्कूल्स के एक इनिशिएटिव शुरू करे, एक प्रोग्राम शुरू करे जिससे हम अपने बच्चों को स्कूल्स में खाना दिलवाएं। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी मुआशी मुआहिदा पेश कर रहे हैं। अभी आपको बताएंगे वजारत दाखिला ने जजेस के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दे दी है। JIT तश्कील दी गई है जजेस के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ बताइएगा किन अरकान पर मुश्तमिल होगी ये JIT? जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA की सरबराही में स्पेशल ये JIT जो है ये बनाई गई है, और ये JIT जो है ये 4 हफ्ते के अंदर इब्तदाई तौर पर अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। इस JIT के मेंबरान में ग्रेड 20 के ऑफिसर्स जो हैं दिए गए हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो से, ISI से, इस्लामाबाद पुलिस के एक DIG और PTA के ग्रेड 20 के एक ऑफिसर जो हैं इनको इसका हिस्सा बनाया गया, और एक मेंबर जो है मजीद भी लेने का इख्तियार दिया गया एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA को। ये जो JIT है ये तहकीकात करेगी कि वो कौन से सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिन्होंने सुपीरियर जुडिशरी के जजेस के खिलाफ कैंपेन लॉन्च की, उनकी किरदार कुशी की, और उनके खिलाफ सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो प्रोपेगेंडा किया गया और उनके खिलाफ जो है कीचड़ उछाला गया। इस सारे मामले की एक इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 4 हफ्ते के अंदर वजारत दाखिला को ये JIT देगी, और इसके अलावा मुस्तकबिल में इस किस्म के वाकयात से बचने के लिए जो है तजावीज भी जो है वो ये JIT पेश करेगी। तो वफाकी हुकूमत ने इस JIT का नोटिफिकेशन जो है, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है, और इसको फौरी तौर पर काम करने की हिदायत जारी कर दी गई है। जी, आसिफ बशीर चौधरी हमें अपडेट कर रहे हैं। वजारत दाखिला ने जजेस के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दे दी है। ये अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी, 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश की जाएगी, और कौन से अवामिल शामिल हैं, कौन से मुहरिकात हैं सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ कैंपेन में, उनकी किरदार कुशी के हवाले से, उसके हवाले से तहकीकात की जाएंगी, और JIT, IB, ISI, PTI अफसरान पर मुश्तमिल होगी। मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए भी तजावीज़ पेश करेगी। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, कोई TORs भी तय किए गए हैं इस हवाले से? वजारत दाखिला ने जजेस के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दे दी है। मोहतरम जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन के बाद ये फैसला किया गया है जो उनकी किरदार कुशी की जा रही थी। अब IB, ISI, PTI अफसरान पर मुश्तमिल एक JIT होगी जो कि 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट मुरतब करके वजारत दाखिला को पेश करेगी। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। आसिफ, बताइएगा कोई TORs तय किए गए हैं इस हवाले से? जी, आपका सवाल मैं सुन नहीं पाया। आसिफ, बताइएगा 4 हफ्ते का वक्त है, JIT अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है इसको इब्तदाई तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो किरदार कुशी की गई है सोशल मीडिया के ऊपर, जो एक गुमराह कुन मुहिम चलाई गई है जजेस के खिलाफ, उनकी फैमिलीज के खिलाफ, उनके फैसलों के ऊपर जो तनकीद की गई है, ये सारी चीजें जो हैं इसका डिटरमिन किया जाएगा कि कौन से सोशल मीडिया अकाउंट से जो इस घिनौनी कैंपेन का जो है वो माखज थे और किन अकाउंट्स ने इसमें हिस्सा लिया। तो इस सारी मामले की तहकीकात
तहकीकात की जाएंगी और एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA साइबर क्राइम विंग जो है वो सरबराह होंगे और उनके साथ ग्रेड 20 के जो ऑफिसर्स हैं, जिनमें एक नुमाइंदा इंटेलिजेंस ब्यूरो से, एक नुमाइंदा ISI से, एक नुमाइंदा जो है पैमरा से जो है वो लिया जाएगा और एक नुमाइंदा ये JIT अपने तौर पर भी कोई इसके अंदर शामिल कर सकेगी। JIT मुल्जिमान की निशानदेही करेगी, उनकी शनाख्त करेगी, उनको कानून के कटहरे में लाएगी और जो पीका का एक्ट है उसके रेलिवेंट लॉज के मुताबिक इनको सजा दिलवाने के लिए जो है वो चालान भी पेश करेगी। JIT के मैंडेट में ये बात शामिल की गई है कि JIT मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए भी सिफारिशात जो है वो पेश करेगी और वजारत दाखिला जो है वो इस रिपोर्ट की रोशनी में इस मामले को आगे बढ़ाएगा। जी, वजारत दाखिला इस रिपोर्ट की रोशनी में मामले को आगे बढ़ाएगा, मुल्जिमान की निशानदही की जाएगी और पीका एक्ट के तहत सज़ा दिलवाने के लिए चालान भी पेश किया जाएगा JIT की तरफ से। 4 हफ्तों में JIT अपनी तफ्तीश मुकम्मल करेगी। JIT के सरबराह एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग होंगे। इसमें एक नुमाइंदा IB का भी होगा, एक नुमाइंदा ISI का, पैमरा से एक नुमाइंदा लिया जाएगा और अपनी तरफ से JIT FIA की तरफ से एक नुमाइंदा इसमें शामिल होगा। जजेस के खिलाफ जो कैंपेन की जा रही है और जो उनकी फैमिली के खिलाफ कैंपेन की जा रही है, उनके फैसलों से मुताल्लिक जो कैंपेन लॉन्च की गई है उससे मुताल्लिक उन अकाउंट्स की निशानदेही की जाएगी। वो कौन ऑपरेट कर रहे हैं अकाउंट्स, कौन मुल्जिमान हैं, उनसे तफ्तीश भी की जाएगी और देखा जाएगा। तो एक ये JIT में तश्कील दी गई है। ये JIT 4 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी और जैसे कि हमें नुमाइंदे बता रहे थे कि मुल्जिमान की निशानदेही इसमें की जाएगी। पैका एक्ट के तहत सज़ा दिलवाने के लिए चालान भी जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे उनका पेश किया जाएगा। बिल्कुल ज़हीर, जिस तरह हमने देखा कि हालिया डेवलपमेंट्स के बाद सोशल मीडिया पर एक किरदार कुशी की मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है सीनियर जजेस के खिलाफ। तो अब वजारत दाखिला ने जजेस के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दी है। एडिशनल DG FIA साइबर क्राइम विंग इसके सरबराह होंगे JIT के और ये JIT IB ISI PTA अफसरान पर मुश्तमिल होगी। पैमरा के नुमाइंदे भी इसमें शामिल होंगे। 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 4 हफ्ते में JIT अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुरतब करके वजारत दाखिला को पेश करेगी कि इन मज़मूम जो अज़ाइम और मकासद के तहत ये कैंपेन चलाई जा रही है, इसके पीछे कौन लोग और कौन से अवामिल शामिल हैं और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तजावीज़ भी पेश की जाएंगी। और पैका लॉज के तहत जो लोग सज़ा के हकदार होंगे उनको सज़ा दी जाएगी। जो लोग सामने आएंगे ज़िम्मेदारान, ये वजारत दाखिला ने जजेस के खिलाफ मुहिम की रोकथाम के लिए JIT तश्कील दी है, जिसके पास 4 हफ्ते का वक्त है और 4 हफ्ते में ये अपनी तहकीकात करके एक रिपोर्ट मुरतब करेगी, वजारत दाखिला को पेश की जाएगी। और जो लोग इस कैंपेन के पीछे मौजूद हैं, जो मज़मूम अज़ाइम हैं, उनके जजेस, उनकी फैमिलीज़ के खिलाफ किरदार कुशी की मुहिम चलाने में उनका किरदार रहा है, उनको सामने लाया जाएगा और पैका लॉज के तहत उन्हें सज़ा दी जाएगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब डेटा मिले एक्सट्रीम विद मंथली सुप्रीम। लगाए और पाए पूरे 20 GB डेटा और इसके साथ 500 अदर नेटवर्क मिनट्स और 5000 जोंग मिनट्स और SMS सिर्फ 999 रुपए के लोड में। अभी *3030# मिलाएं। Song 4G। Vitamax Women, vital for every woman. By Nutrifactor. पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने ही दाग मिटाता है। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकालेगा। तेरे मेरे साथ से नहीं कुछ भी ऊपर, सीधी सादी खुशी है सुपर। जब इजी पैसा बैंक अकाउंट करे सेविंग और दे डेली प्रॉफिट, तो तुम अपने टाइम का क्या करोगे? इजी पैसा, लिव इजी। एक माँ ही बनाती है बेटी को सर से मजबूत, जड़ से मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू का मिल्क प्रोटीन और एलोवेरा फॉर्मूला बनाए इसके बालों को मजबूत। लाइफ बॉय शैम्पू, तुम मजबूत हो। भाईजान, फोन का रेट लगवाना है बॉस। क्या चाहिए? क्या चाहिए क्या मतलब? गोलियां के टॉफियां। गोलियां, टॉफियां, बस रेवड़ियां भी हैं। दूं क्या?
क्या आप अपने फोन के बेहतर रेट चाहते हैं? आपके पुराने फोन का रेट जब आम जगह से लगेगा तो यही सब मिलेगा। इसीलिए अभी सैमसंग ट्रेड इन ऑफर से फायदा उठाएं। अपना कोई भी पुराना मोबाइल हमें दे जाएं और नया सैमसंग फोन ले जाएं। सैमसंग ट्रेड इन ऑफर, पुराना फोन लाओ, नया फोन ले जाओ। एक मिनट नसीम भाई, ये कड़कता है भी। अब ये कौन साफ करेगा? एक्सप्रेस पावर। ये सारे दाग तो हम पहले से साफ कर रहे हैं बच्चों, धुलाई में बराबर और बचत पूरे 200 रुपए की। अब होगा हर एक्शन ग्रैंड विद यूफोन 4G सुपर कार्ड, जिससे मिले शॉक ऐप बिल्कुल फ्री 20 GB और नॉन स्टॉप कॉलिंग मिनट्स के साथ पूरे महीने के लिए सिर्फ ₹949 में। तो अभी *899# डायल करो, क्योंकि सुपर कार्ड से शॉक तो लगेगा। लाल हार्पिक बाथरूम क्लीनर, इसको पानी में मिलाएं और फर्श चमकाएं, सख्त दागों पर सीधा लगाएं और करें टाइल और बेसिन की डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई। तो फर्श, टाइल्स और बेसिन के लिए न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर बाय लॉरियल पेरिस। इसमें शामिल हाइलुरॉनिक एसिड जो बालों को इंस्टेंटली मॉइस्चर से भरकर उसको लॉक करे और रखे 72 आवर्स तक हाइड्रेटेड। न्यू एलवीव हाइलुरॉन मॉइस्चर शैम्पू बाय लॉरियल पेरिस। We're worth it। तैयार रहो अगर करना है ग्लो। मंजिल के रास्ते पर धूप से ना डरो, धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, सीरम क्रीम। इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। धूप में भी हम हैं तैयार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। Vitamax Women, vital for every woman. By NutriFactor. Cake time! हमें पूरे 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, तो जरासीम नहीं जाएंगे। धोते जाओ धोते, हाँ? धोते जाओ धोते जाओ धोते। बंटी, तुम्हारा साबुन स्लो है क्या? नया लाइफबॉय सुपरफास्ट हैंड वॉश अब विटामिन के साथ। ये दे आम साबुन के मुकाबले जरासीम से 100% स्ट्रॉन्गर हिफाजत सिर्फ 10 सेकंड में। हर प्रॉब्लम के हल की डिलीवरी, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा। न्यू स्ट्रॉन्गर पेप्सी, क्या टेस्ट है यार। जब इजी पैसा बैंक अकाउंट करे सेविंग और दे डेली प्रॉफिट, तो तुम अपने टाइम का क्या करोगे? इजी पैसा, लिव इजी। दोस्ती की इसी मिठास के लिए बना है कैंडी। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ। जैज मंथली यूट्यूब एंड सोशल ऑफर पाएं 15 GB इंटरनेट, 50 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 500 जैज मिनट्स और SMS सिर्फ 380 रुपए की डिस्काउंटेड प्राइस में। *620# कोड मिलाएं। सुपर नहीं तो 4G नहीं। जैज सुपर 4G। बानी पीटीआई ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का प्लान सी तैयार है जो बहुत जल्द सामने आएगा। अरियाला जेल में लगी अदालत में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए बानी तहरीक इंसाफ ने कहा कि 8 फरवरी को पता चल जाएगा कि हमारा प्लान सी क्या था। फौज के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला, इदारों के खिलाफ मुहिम नहीं चलाई। उनका कहना था कि जनरल बाजवा से ऐवान सदर में 2 बार मुज़ाकरात किए मगर उसने पीठ में छुरा घोंपा। जनरल बाजवा ने कहा कि साइफर की बात ना करो, अच्छे बच्चे बन जाओ। बानी पीटीआई का यह भी कहना था कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अरकान को ना कोई धमकी दी, ना उनको जानते हैं। इलेक्शन मुतनाज़े हो चुके हैं, दुनिया कैसे इन इंतखाबात को तस्लीम करेगी। अदलिया पर एतमाद अब खत्म हो चुका, सारी पार्टी को खत्म कर दिया गया है। बानी पीटीआई ने कहा कि हमारे उम्मीदवारों को कैदी नंबर 804 की तस्वीर लगाने से भी रोका जा रहा है। उनका मजीद कहना था कि हम कह कहकर थक गए हैं कि 9 मई की आज़ादाना इंक्वायरी की जाए, गैर जानिबदाराना तहकीकात नहीं की गई, CCTV वीडियोस चोरी कर ली गई। उन्होंने सवाल किया कि उनके कत्ल की कोशिश की CCTV वीडियो कहाँ गई।
बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत में निकाह के केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अडियाला जेल में केस की समाअत के दौरान सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। फर्द जुर्म के वक्त बानी पीटीआई कमरा अदालत में मौजूद थे। अदालत ने बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी पर इजहार बरहमी किया। वकला सफाई ने बुशरा बीबी की दरखास्त इस्तिस्ना मंजूर करने की इस्तदा की थी। और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को 9 मई के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। शेख रशीद रावलपिंडी की अदालत में जमानत खारिज होने पर अदालत के अहाते से उन्हें गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद को न्यू टाउन थाने में दर्ज 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि 9 मई को वो हमजा कैंप के इलाके में थे ही नहीं। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को कलम दुआ जीतेगी। मैं जेल जा रहा हूँ और मुझे जेल जाने का हुक्म हुआ है। कोई इंशाअल्लाह ताला मेरा मौला चाहा था। मैं हमजा कैंप में बिल्कुल मौजूद नहीं था। मैं खुदा को दुआ कहता हूँ किसी चीज़ में मौजूद नहीं था। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को कलम दुआ जीतेगी। 55 और 56 में भी जान जाती है जाए अल्लाह की राह में। कलम दुआ जीतेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि अवाम शेर को फतह से हमकिनार कराएं। खिदमत में दिन रात एक कर देंगे। तरक्की का सिलसिला जहां रुका था वहीं से आगे बढ़ाएंगे। लाहौर के इलाके गज्जूमता में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि अवाम जितना वोट देंगे उतना रिलीफ मिलेगा। हर घर से महंगाई का खात्मा होगा। लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने खिदमत के जो रिकॉर्ड कायम किए थे पिछले 5 साल में, जब घुस